Welcome back to the aphorism series. In this video, we are going to talk about aphorism number 60. Aphorism 60 states disadvantages of increasing potency. Let us start by reading the aphorism. If these ill effects are produced, as may very naturally be expected from the antipathic employment of medicines, the ordinary physician imagines he can get over the difficulty by giving at each renewed aggravation a stronger dose of the remedy, whereby an equally transient suppression is effected. And as there then is a still greater necessity for giving ever increasing quantities of the palliative, there ensues either another more serious disease or frequently even danger to life and death itself, but never a cure of a disease of considerable or of long standing. तो इस एफोरिज्म में डॉक्टर हेनेमन ये बोल रहे हैं कि ये चीज़ नेचुरली एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप जब भी कभी आप एंटीपैथिक एम्प्लॉयमेंट देखेंगे मेडिसिन का कि इल इफ़ेक्ट्स तो पक्का आएंगे, कोई ना कोई एग्रावेशन तो पक्का आएगी। जैसे ही टेम्परेरी रिलीफ ख़त्म होगा एग्रावेशन आना तय है। ये हमने 59th एफोरिज्म में भी पढ़ा था। पर अब फिजिशियन क्या करेगा? ऑर्डिनरी फिजिशियन के पास आंसर्स तो होंगे नहीं। अब जब आंसर्स नहीं होंगे पेशेंट को देने के लिए, तो हमने 59th एफोरिज्म में पढ़ा, या तो वो पेशेंट को कहेगा कि ये तो मैलिग्नेंसी थी, पहले ही हमें पता नहीं चल पाई, या ये कोई नई बीमारी है। वो अपनी गलती नहीं मानेगा, वो अपने ट्रीटमेंट को फॉल्टी नहीं समझेगा, जबकि उसी का ट्रीटमेंट फॉल्टी है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, एक नया स्टेप जो वो ले सकता है वो ये ले सकता है कि वो स्ट्रॉन्गर डोज दे पेशेंट को। और ये जो स्ट्रॉन्गर डोज होगी ये इक्वली ट्रांजिएंट सप्रेशन कॉज करेगी। अब इक्वली ट्रांजिएंट सप्रेशन का मतलब क्या हुआ? पहले डोज जो पेशेंट को दी गई उसने तो कंडीशन को पैलिएट करा, सप्रेस करा, कुछ भी कह लो। अब जो दूसरी डोज अब आप स्ट्रॉन्गर पोटेंसी में दे रहे हो उसका क्या असर हो सकता है? इट कैन प्रोड्यूस मोर सीरियस डिजीजेस, और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जान को खतरा तक हो जाए। इट कैन बी डेंजर टू लाइफ एंड डेथ इटसेल्फ। पर कभी भी ऐसी कंडीशंस जो कि कंसिडरेबली लॉन्ग स्टैंडिंग होती हैं, इनको क्योर नहीं कर सकती स्ट्रॉन्गर पोटेंसी। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्गर पोटेंसी आप किस केस में दे रहे हो, किस पैथी पे बेस दे रहे हो? आप कॉन्ट्रेरिया पे दे रहे हो, कॉन्ट्रेरिया कॉन्ट्रियस पे दे रहे हो, जो कि हमारी पैथी से बहुत डिफरेंट है। तो चाहे आप कितनी स्ट्रॉन्गर पोटेंसी दे दो, उस स्ट्रॉन्गर पोटेंसी भी सप्रेशन का ही काम करेगी, क्योर का काम नहीं करेगी। अब इसका फुटनोट रीड करते हैं। ऑल यूजुअल पैलिएटिव्स गिवन फॉर द सफरिंग ऑफ द सिक हैव as after effects an increase of the same suffering, and the older physicians had to repeat them in ever stronger doses in order to achieve a similar modification, which however was never permanent and never sufficient to prevent an increased recurrence of the ailment. But Brousseau, who 25 years before contended against the senseless mixing of different drugs in prescription and thereby ending its reign in France, for which mankind is grateful to him, introduced his so-called physiological system without taking note of the homeopathic method then already established, a method of treatment while effectively lessening and permanently preventing the return of all the sufferings was applicable to all diseases of mankind, a thing that the palliatives then in use were not capable of effecting. Being able to heal diseases with mild innocent remedies and thus establish health, Brousseau found the easier way to quiet the sufferings of patients more and more at the cost of their life, and at last to extinguish life wholly, a method of treatment that, alas, seemed sufficient to his contemporaries. In the degree that the patient retains his strength, with his ailments be apparent, and more intensely will he feel his pains. He moans and groans and cries out and calls for help more and more vociferously, so that the physician cannot come any too soon to give relief. Brousseau needed only to depress the vital force, to lessen it more, and behold, the more frequently the patient was bled,
the more leeches and cupping glasses sucked out the vital fluid, for the innocent, irreplaceable blood was according to him responsible for almost all ailments. In the same proportion, the patient lost strength to feel pain or to express his aggravated condition by violent complaint and gestures. The patient appears more quiet in proportion as he grows weaker. The bystanders rejoice in his apparent improvement, ready to return to the same measures on the renewal of his sufferings, be they spasms, suffocation, fear, or pain, for they had so beautifully quieted him before and gave promises of further ease. In disease of long duration, and when the patient retained some strength, he was deprived of food, put on a hunger diet, in order to depress life so much more successfully and inhibit the restless states. The debilitated patient feels unable to protest against further similar measures of bloodletting, leeches, vesication, warm baths, and so forth to refuse their employment. That death must follow such frequently repeated reduction and exhaustion of the vital energy is not noticed by the patient, already robbed of all consciousness, and the relatives blinded by the improvements even of the last sufferings of the patient by means of bloodletting and warm baths, cannot understand and are surprised when the patient quietly slips away. But God knows the patient on his bed of sickness was not treated with violence, for the prick of a small lancet is not really painful, and the gum arabic solution was mild in taste and without apparent action, the bite of the leeches insignificant, and the bloodletting by the physician done quietly, while the lukewarm baths could only soothe. Hence, the disease from the very start must have been fatal, so that the patient, notwithstanding all efforts of the physician, had to leave the earth. In this way, the relatives and especially the heirs of the dear departed consoled themselves. The physicians in Europe and elsewhere accepted this convenient treatment of all disease according to a single rule, since it saved them from all further thinking, the most laborious of all work under the sun. They only had to take care to assuage the pangs of conscience and console themselves that they were not the originators of this system and this method of treatment, that all the other thousands of Brosowitz did the same, and that possibly everything would cease with the death anyway, as was taught by their master. In this way, many thousand physicians were miserably misled to shed the warm blood of their patients that were capable of cure, and thereby rob millions of men gradually of their life, according to Brusseau's method, more than fell on Napoleon's battlefields. Was it perhaps necessary by the disposition of God for that system of Brusseau, which destroyed medically the life of curable patients, to precede homeopathy, in order to open the eyes of the world to the only true science and art of medicine, homeopathy, in which curable patients find health and new life, when this most difficult of all arts is practiced by an indefatigable, discriminating physician in a pure conscientious manner? अब इस फुटनोट में डॉक्टर हेनेमन ब्रूसो के कंट्रीब्यूशन के बारे में बता रहे हैं, पर उससे पहले उन्होंने लिखा कि जितने भी यूजुअल पैलिएटिव्स हैं ये पेशेंट की सफरिंग को कम नहीं करते, ये एग्रेवेट कर देते हैं। कुछ समय के लिए पैलिएट करेंगे, सिम्टम को एलिविएट करने की कोशिश करेंगे, पर लेकिन क्या होगा, आप इसको स्ट्रॉन्गर डोज में दोगे तो भी ये पेशेंट को सप्रेस ही कर रहा है, पेशेंट की डिजीज़ को सप्रेस ही कर रहा है। ठीक है, कभी ये परमानेंट क्योर की तरफ नहीं जाएगा। ये जो पैलिएटिव ट्रीटमेंट है या एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट है, ये कभी भी रेकरेंस को नहीं रोकेगा। ये हो सकता है कि पेशेंट को वो सेम सिम्टम्स रिपीट हों और एक नेक्स्ट लेवल की सीवियरिटी पे रिपीट हो। पर ब्रूसो का कंट्रीब्यूशन क्या रहा? डॉक्टर हेनेमन ने लिखा कि ब्रूसो 25 इयर्स पहले ही वो इस चीज़ से कंटेंटेड थे, मतलब कि खुश थे कि उन्हें
ये सेंसलेस मिक्सिंग नहीं करनी है अलग अलग ड्रग्स की, उनको कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रिस्क्रिप्शन नहीं देना है पेशेंट को। और थैंक्स टू हिम कि उन्होंने ये जो रेन था, ये जो एक हायरार्की चली आ रही थी मिक्सोपैथी की, बहुत सारे ड्रग्स को मिक्स करके प्रिस्क्रिप्शन में देने की, इसका इन्होंने एंड कर दिया फ्रांस में, जिसके लिए मैनकाइंड इनका बहुत ग्रेटफुल भी है। और इन्होंने अपना ही एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसको इन्होंने कहा कि फिजियोलॉजिकल सिस्टम। यहाँ पे हालांकि होम्योपैथी तब तक इस्टेब्लिश हो गई थी, पर लेकिन इन्होंने होम्योपैथिक मेथड को ना फॉलो करके अपना ही एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। एक ऐसा मेथड जहाँ पे बहुत कम चांसेस हो, या मान लीजिए कि परमानेंट प्रिवेंशन ही हो जाए कि कोई भी सफरिंग दोबारा रिटर्न ना हो। एक ऐसा मेथड इंट्रोड्यूस किया इन्होंने जो कि उस समय में सोचना बहुत मुश्किल था, क्योंकि तब जो पैलिएटिव्स थे वो इतना केपेबल नहीं थे अफेक्शन के। तो उस समय इन्होंने ऐसा सोचा, ये सोचना ही बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था उनका, पर लेकिन वो अचीव नहीं कर पाए। तो वो अचीव क्यों नहीं कर पाए, वो चीज़ आगे फुटनोट में समझाई गई है कि डिज़ीज़ को हील करने के लिए विद माइल्ड इनोसेंट रेमेडीज़ और हेल्थ को इस्टेब्लिश करने के लिए ब्रूसो ने एक ईजियर वे फाइंड करने की कोशिश की। पर वो ईजियर वे पेशेंट को ठीक ना करके उनकी लाइफ कॉस्ट कर रहा था। लाइफ कॉस्ट कर रहा है यानी कि उनकी जान जोखिम में डल रही थी, क्योंकि इनके जो फॉर्मूलेस थे, जो सिस्टम था इनका, वो बहुत ही अलग था। उन्होंने क्या किया, इन्होंने जैसे ही पेशेंट पेन में होता था, व्हाट ही यूज्ड टू डू, वो पेशेंट की वाइटल फोर्स को डिप्रेस करने की कोशिश करते थे। उन्हें लगता था कि वाइटल फोर्स डिप्रेस होगी, जितना वो लेसन होती जाएगी उतना ज़्यादा पेशेंट ठीक होता जाएगा। पर वो पेशेंट ठीक नहीं हो रहा था। पीछे इसकी वजह क्या थी, जब आप वाइटल फोर्स को डिप्रेस करेंगे तो क्या होगा, पेशेंट वीक होता जाएगा। अब वीक होता जाएगा तो उसको ऑलरेडी जो चीज़ें बहुत लाउडर हो रही थी, जो पेन बहुत ज़्यादा थे, अब वीक होने की वजह से उसको इतना फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। आगे उन्होंने कहा कि हो सकता है कि ये जो सफरिंग्स हैं ये एक नया रूप ले लें। डॉक्टर हैनेमन ये बता रहे हैं कि ये जो प्रैक्टिस चल रही थी उस समय, ब्लड लेटिंग की, लीच थेरेपी की, वार्म बाथ्स की, ये कुछ भी हेल्पफुल नहीं था। हालांकि ब्रूसो का जो इंटेंशन था वो अच्छा था, पर लेकिन जो उनके मेथड्स, दे वर नॉट इन द राइट डायरेक्शन। अब वो पेशेंट की वाइटल फोर्स को डिप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, और उससे ज़्यादा क्या, उससे ज़्यादा पेशेंट को बोल रहे थे कि आप स्टार्वेशन प्रैक्टिस करो, आप हंगर स्टार्वेशन प्रैक्टिस करो। अब जितना आप कम खाएंगे उतना आप ज़्यादा अच्छे रहेंगे या ठीक हो जाएंगे। यानी कि इन्होंने एक अपना सेट बना लिया था, एक मोड था इनका जिसके थ्रू ये अपनी पैथी चलाना चाहते थे, अपना सिस्टम चलाना चाहते थे। पर ये जो हंगर डाइट थी, इससे पेशेंट सिर्फ डेबिलिटेट हो रहा था, वीक पड़ रहा था, ठीक है, इससे कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। तो जो प्रैक्टिस इन ब्रूसो ने इंट्रोड्यूस की, एक बार उनके बारे में पढ़ लेते हैं। पहली प्रैक्टिस उन्होंने कहा कपिंग, दूसरी प्रैक्टिस उन्होंने कहा लीच थेरेपी, तीसरी प्रैक्टिस ब्लड लेटिंग, चौथी प्रैक्टिस हंगर डाइट। तो इन सब का कोई पॉजिटिव अफेक्शन नहीं था बॉडी पे, रैदर पेशेंट और ज़्यादा डेबिलिटेटेड और डेथ की तरफ जा रहा था। इनका क्या था कि बहुत ज़्यादा एक्सॉर्शन क्रिएट कर रहे थे बॉडी में। अब क्योंकि वाइटल एनर्जी बहुत कम थी तो पेशेंट के अंदर जितनी भी कॉन्शियसनेस थी ना, वो सारी रॉब्ड ऑफ हो रही थी, यानी कि वो सब छिनती जा रही थी पेशेंट से। और जो रिलेटिव्स थे वो दे वर ब्लाइंडेड बाय द इम्प्रूवमेंट्स। उनको लग रहा था कि पेशेंट ठीक हो रहा है, पेशेंट इम्प्रूव हो रहा है उस पर, लेकिन ये इम्प्रूवमेंट नहीं थी, ये बेसिकली पेशेंट को एकदम से डेथ की तरफ ले जाने वाला एक पाथ था। और तभी डॉक्टर हैनेमन ने लिखा कि relatives were blinded by the improvements even of the last sufferings of the patient by means of bloodletting and warm baths, cannot understand and are surprised। और उस समय फिर रिलेटिव सरप्राइज होते थे जब पेशेंट स्लिप्स अवे मतलब कि जब पेशेंट चला जाता था। डॉक्टर हैनेमन ने कहा, बट गॉड नोज द पेशेंट ऑन हिज बेड ऑफ सिकनेस वॉज नॉट ट्रीटेड विद वायलेंस। बस भगवान जानता है कि स्मॉल लेंसेट से भी जो प्रिक की जा रही है, ठीक है, माना वो बहुत ज़्यादा पेनफुल नहीं है,
द गम अरेबिक सोल्यूशन, ऑडे गॉर्मे, ये जो मेडिसिन है, ये सोल्यूशन हमेशा ब्रूसो यूज़ करते थे. इट वॉज द ओनली मेडिसिन दैट ब्रूसो यूज्ड. और ये बहुत माइल्ड होती है टेस्ट में, इसका कोई अपेरेंट एक्शन भी नहीं है. बाइट ऑफ लीचेस, ये बहुत इनसिग्निफिकेंट होते हैं, जो लीच की थेरेपी वो यूज़ करते थे. द ब्लड लेटिंग भी तब करते थे जब ल्यूकवार्म बाथ्स दे रहे थे. ल्यूकवार्म बाथ्स को यूज़ किया जाता था पेशेंट को सूद करने के लिए, और फिर ब्लड लेटिंग की जाती थी. और वहाँ पे जितने भी बाय स्टैंडर्स थे, यानी कि जो हायर्स थे, जो रिलेटिव्स थे पेशेंट के, वो बस यही सोच के अपना दिल कंसोल कर लेते थे कि यार हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फेटल बीमारी रही हो, जिसकी वजह से फिजिशियन के इतने एफर्ट्स डालने के बाद भी वो सोल डिपार्ट कर गई या वो पेशेंट चला गया. तो ये जो इतने सारे इन्होंने कॉम्प्लिकेशंस या कॉम्प्लिकेटेड मेथड्स यूज़ किए पेशेंट को ठीक करने के लिए, ये बेसिकली क्रिटिसाइजेबल हैं. इसीलिए डॉक्टर हैनेमन इनको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ठीक है, आपने फुल स्टॉप लगाया, एक जेंटल क्योर की तरफ आपने सोचा, पर लेकिन वो जेंटल क्योर भी जेंटल नहीं था ना. वो जेंटल क्योर भी पेशेंट को डेथ बेड की तरफ ही लेके जा रहा था. और इसी तरह बहुत से फिजिशियंस ने जिनको मिसलेड किया गया, गलत दिशा दिखाई गई. ब्रूसो के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इसी मेथड को फॉलो किया और बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई इस वजह से. यहाँ पे डॉक्टर हैनेमन ने ये भी कहा कि ब्रूसो का मेथड इतना लाइफ डेंजरिंग था कि इतने लोग नेपोलियन की बैटल फील्ड में नहीं मरे होंगे जितना ब्रूसो के मेथड की वजह से मर गए. तो डॉक्टर हैनेमन इसीलिए बोल रहे हैं कि जो ब्रूसो का जो मेथड है वो इतना डिस्ट्रक्टिबल है, लाइफ क्योर नहीं कर रहा पेशेंट की, रैदर उनको और ज़्यादा डेंजर में डाल रहा है. तो क्या हम अभी भी अपनी आंखें खोल के ये नहीं देख सकते कि सिर्फ एक होम्योपैथी ही है जो कि ट्रू साइंस एंड आर्ट ऑफ मेडिसिन है. अब यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि साइंस भी कहा गया और आर्ट भी कहा गया. साइंस क्यों? क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है. और आर्ट क्यों? क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन एक आर्ट है. आपको हर बार अनप्रेजुडाइज्ड होके हर केस को नए सिरे से देखना है, हर इंडिविजुअल केस को, हर केस की टोटलिटी को एक अलग तरीके से देखना है और फिर पेशेंट को प्रिस्क्राइब करना है. तो ये सिर्फ इकलौती साइंस और आर्ट है मेडिसिन की जो पेशेंट को क्योर के रास्ते पे लेके जाती है. चलिए इसका एक्सप्लेनेशन रीड करते हैं. इंक्रीजिंग डोसेजेस फॉर पैलिएटिव रिलीफ. The ordinary physician faced with ill effects from antibiotic treatments often resorts to giving stronger dose of the remedy to suppress renewed aggravations. Temporary suppression. Stronger doses lead to temporary suppression of symptoms, but also to the need for ever-increasing quantities of the palliative, sometimes resulting in more serious diseases or even danger to life. Brusso's physiological system. Brusso criticized the senseless mixing of different drugs and introduced a physiological system that effectively lessened and permanently prevented the return of sufferings in all diseases. Brusso's method. Brusso focused on healing with mild, innocent remedies to establish health, but this method, while appearing sufficient to contemporaries, actually quieted sufferings at the cost of life. Depressing the vital force. Brusso's method involved depressing the vital force by bleeding, leeches, and other means, leading to a decrease in the patient's ability to feel pain or express their condition. Quietness as weakness. Patients appeared more quiet as they grew weaker, leading to a misconception of improvement by bystanders and a readiness to repeat the same measures on the renewal of sufferings. Misled physicians. Physicians misled by the apparent improvements from treatments like bloodletting and warm baths fail to notice the repeated reduction and exhaustion of the vital energy which ultimately led to death. Convenient treatment. Physicians accepted Brusso's treatment
as it saved them from further thinking, allowing them to conveniently treat all diseases according to a single rule. Millions affected. Brusso's method, which medically destroyed the lives of curable patients, may have been necessary to precede homeopathy, opening the eyes of the world to the true science and art of medicine. That's all in the video. Thank you for watching.